Hello बच्चों, this is J Ahmed, your physics teacher from Central Public School. In the previous lectures, we studied about the combination of resistors in series or parallel, and we also see the derivation for R equivalent of two resistors which were connected in series as well as were connected in parallel. And we also form a general formula of R equivalent in series that was sum of all the resistors, and that is known as the law of combination of resistors in parallel. The law of combination of resistors, in series. The law of combination of resistors in series says that the R equivalent is equals to the sum of the all the individual resistances. Okay, and the law of combination of resistors of parallel says that the reciprocal of the R equivalent is equals to the sum of the reciprocals of the individual resistances. And in today's lecture, we are going to see some doubts which were asked by some students. So today's lecture is completely dedicated to the doubts of students. So the first question is from NCERT, which is an in-text question. Here the question says, as I am going to read it. It is an in-text question, and I don't know the page number. What is it? It is the question number 2, and it is just before the heating effect of electric current. So the question says, an electric lamp of 100 ohm. There is an electric lamp whose resistance is 100 ohm. So I assume that the electric lamp as R1 and its value is 100 ohm. This is given. Then there is a toaster of resistance 50 ohm. So I suppose the toaster to be R2 and its resistance is 50 ohm. And then a water filter of resistance 500 ohm. So I assume the water filter as R3 and its resistance is 500 ohm. Some data are also given. All are connected in parallel. All these three are connected in parallel. So if we have to calculate the R equivalent, so we have to go for the formula of R equivalent of resistors connected in parallel. Here is the formula, and a potential difference of 220 volt is applied. So this is our potential difference of 220 volt. It is given. The question says, what is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as the three appliances? We have to find the resistance of an electric iron which draws the same current as all these three draws together. So this is simple problem of R equivalent. हमने पढ़ा है कि R equivalent क्या होता है. वैसा एक सिंगल रसिस्टर जो उतना ही करंट ड्रॉ करे सर्किट से जो सारे इंडिविजुअल रसिस्टर्स ड्रॉ करते हैं. तो हमें एक आयरन, एक ये हमको दे दिया क्वेश्चन एक आयरन पे कि आप उस आयरन का रेसिस्टेंस निकालो जो कि उतना ही करंट ड्रॉ करे जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं. तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन तीनों का आर इक्विवेलेंट निकालना होगा. ठीक है, तो हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया और तीनों का आर इक्विवेलेंट हमने निकाला. ये 1/100, 1/50, 1/500. The LCM is 500, and after solving this, we got 500/16 ohm. That is the R equivalent. And after solving, we get 31.25. Okay. एंड मैंने ये भी बोला था पिछले लेक्चर में कि कभी भी अगर करंट की वैल्यू सर्किट से पता करनी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे. ठीक है, तो सर्किट का जो करंट होगा, जो सारे सर्किट में फ्लो होगा, इसको हम विजुअलाइज करते हैं ऐसे. सपोज दिस इज द फर्स्ट अप्लायंस, दिस इज द सेकेंड अप्लायंस एंड दिस इज द थर्ड अप्लायंस. ठीक है, और ये सारे मिलके करंट ड्रॉ कर रहे हैं आई, जो आई किसके बराबर है मेरा 7.04. हमने क्या किया, तो मैंने बोला था कि कभी भी करंट सर्किट का निकालना हो तो हम सबसे पहले आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे. और आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के बाद हमने ओम्स लॉ लगा दिया. ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर. तो हमने आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट लगाया तो हमारे करंट का वैल्यू आ गया 7.04. यानी जो सर्किट में करंट फ्लो होगा कब फ्लो होगा, जब उस आयरन को कनेक्ट करेंगे. और उस आयरन का रेसिस्टेंस क्या होगा, यही होगा जो सबका आर इक्विवेलेंट है, वही होगा, क्योंकि यही वो वैल्यू है ना जी रेसिस्टेंस का जो ये करंट ड्रॉ कराएगी सर्किट से. ठीक है, तो हमारा आयरन का जो रेसिस्टेंस होगा वो ये होगा, और वो आयरन जो करंट हमारे सर्किट से लेगा दैट इज द वैल्यू 7.04 एम्पियर. ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है. अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9. इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक
बैटरी या देखता हूं मैं, a battery of 9 volt, there is a battery of 9 volt is connected in सीरीज में कनेक्टेड है, और ये 5 रेसिस्टर्स के वैल्यू दिए हुए हैं, R1 is 0.2, R2 is 0.3, R3 is 0.4, 0.5 and 12 ohm, and we have to calculate the current from this resistor R5. Since all the 5 resistors are connected in series, so the current through all the resistors is same. हमने पढ़ा है सीरीज में सारे रेसिस्टर्स में करंट का वही वैल्यू होगा जो किसी भी एक में होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सर्किट का करंट निकाल लेना है कि सर्किट में क्या करंट है, और वो जो सर्किट का करंट होगा वही सब में फ्लो करेगा हमारा। ठीक है, तो अब सर्किट का करंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। हमने आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया क्योंकि ये सीरीज, सिंस दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, so we applied the formula for series, R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3 R4 I5। हमने जोड़ा सबको, ये आया 13.5, हमने सारे वैल्यूज को जोड़ दिया, 13.5 ये R equivalent आ गया हमारा। अब करंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, I equals to V upon R equivalent, हमने ये फॉर्मूला लगाया और I का वैल्यू हमारा आ गया 0.67 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब इसके आगे और भी डाउट्स है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आई होप ये वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9, 10 और 11, ये जो आज की ये जो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये 10th बी की एक लड़की है अनन्या, उसी ने पूछा है, रोल 4। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, the next one is question number 10 of the exercise of NCERT. It says how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। ये हमसे कह रहा है कि हम 176 गिवन जो हमारे रेसिस्टेंस का वैल्यू है, ये हमको दिया है 176 ओम। ठीक है, ये बोल रहा है हमें कि इतना इस वैल्यू के कितने रेसिस्टर्स को हम पैरेलल में जोड़ेंगे जब हमारा जो हमारा सर्किट का करंट है वो हो जाए 5 एम्पियर, और V का वैल्यू जो है हमारा 220 वोल्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो सर्किट का करंट है वो कैसे आता है, सर्किट का करंट का फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, मैंने अभी बताया। तो R इक्विवेलेंट कैसे आ जाएगा हमारा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ठीक है, अब हमने R इक्विवेलेंट यहां से निकालना है, तो R इक्विवेलेंट हमारा होगा 220 अपॉन 5, ये 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, दिस इज 44 ओम। द आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट इज 44 ओम। ठीक है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि हम कितने रेसिस्टर्स इस वैल्यू के लगाएंगे पैरेलल में कि हमारा आर इक्विवेलेंट ये आ जाए। ठीक है, रेसिस्टेंस पे तो काम कर सकते हैं हम अब आराम से। तो हमने माना लेट देयर आर n रेसिस्टर्स। ठीक है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन Rn। ठीक है, अब क्योंकि सारे रेसिस्टर्स की वैल्यू सेम है, कितने हैं 176 प्लस 176 प्लस ये n टाइम्स तक जाएगा ये सम। अब एक बात बोलो, आप 2 को 4 बार जोड़ लो, कितना आना है ये 4 और सॉरी 8, या 4 टाइम्स 2 कर लो वो भी 8 आ गया। तो अगर हमको सम दिया हुआ है सेम नंबर्स का बार बार जितने टाइम्स, अगर उतने टाइम n को हम मल्टीप्लाई कर दें उस वैल्यू में तो हमारा रिजल्ट वैसे भी आ जाएगा। अब ये जो हमारा 1/76 का एडिशन है वो n टाइम्स जा रहा है, तो इस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है हमारा शॉर्टकट फॉर एडिशन। तो हम इसको 176 को n टाइम्स जोड़ने की जगह हम एक ही 1/76 को n से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू हमारा है 44, सो n इंटू 1/176। अब n का वैल्यू क्या होगा, हम इधर ये 76 नीचे ऊपर जाएगा, सो n विल बी इक्वल्स टू 176 अपॉन 44 and this will be equals to 4,
So we have to connect 4 resistors of this value to get a current of 5 ampere through a supply of 22 to 222 volt. This is the answer. Now the next question. This was the question number 10 of exercise. I hope ये आपको clear हो गया होगा. Now the next question. The next question is the 11th question. It says, so how you would connect 3 resistors, each of resistance 6 ohm. So we have to connect 3 resistors. Okay, given here R1 is equals to 6, R2 is equals to 6 ohm, and R3 is also equals to 6 ohm. Okay, 6 ohm, so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm. We have two R equivalent values. R equivalent 1 is 9 ohm and R equivalent 2 is given 4 ohm. So what can be the answer? अब 3 रसिस्टर्स को हम कैसे जोड़ सकते हैं? हमारे पास चार तरीका है इसको जोड़ने का. एक, या तो सारे रसिस्टर्स को कैसे जोड़ दें हम पैरेलल में, और एक सारे रसिस्टर्स को जोड़ दें सीरीज में. तो सीरीज में जोड़ेंगे तो सबका सम हो जाएगा. 6 6 6 18 होगा. 18 हमको लाना नहीं है. दूसरा क्या कंडीशन है हमारा? सबको पैरेलल में जोड़ दें. लेकिन पैरेलल में जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1/6. ये हो जाएगा मेरा 1, यानी आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा 2 अगर पैरेलल में जोड़ेंगे. तो ये पूरा सीरीज में लगने वाला है नहीं, ना ही ये पैरेलल में लगने वाला है, यानी ये कॉम्बिनेशन है. अब कॉम्बिनेशन दो तरह का हो सकता है. एक तो पहला रसिस्टर आप सीरीज में ले लो, पहले वाला, और बाकी के दोनों को साथ में पैरेलल में ले लो, ये हो गया. या एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है, दो को सीरीज में ले लो और तीसरे को उसके साथ पैरेलल में ले लो. बस यही 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 3 रसिस्टर से. एक सारा सीरीज, दूसरा सारा पैरेलल, तीसरा कॉम्बिनेशन 2 पैरेलल और उसके साथ तीसरे को सीरीज में ले लीजिए, और चौथा कॉम्बिनेशन है 2 सीरीज और उसके साथ तीसरे को पैरेलल में ले लेते हैं हम. तो 9 ओम लाने के लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं. सबसे पहला तो हम वो पहला देखते हैं, ये वाला पैटर्न. तो अगर हम दो पैरेलल को पैरेलल में जोड़ते हैं, दो रसिस्टर्स को, ठीक है, पहले वाले दो रसिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं, तो उसका आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा? आर इक्विवेलेंट, ठीक है, वो आ जाएगा मेरा 1/6 प्लस 1/6 1/R इक्विवेलेंट. दिस विल बी इक्वल टू 2/6 यानी 1/3. तो आर इक्विवेलेंट यहां से हमारा आ जाएगा 3 ओम. ठीक है, यानी इन दोनों को हटा के हम 3 ओम डाल सकते हैं, और फिर इस 3 ओम को 6, ये हमारा सीरीज में है, तो इसको हटा के हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये 6 ओम और इन दोनों के जगह पे 3 ओम लिख दिया हमने. अब देखो 6 + 3 कितना आ जाएगा? 9. सो वी हैव टू कनेक्ट 2 resistors इन पैरेलल एंड द थर्ड वन शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द अदर 2. तो हमको 9 ओम का मिल जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस वाले में, ये हमारा हो गया कितना? 6 और 6. तो क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा? 12 ओम. तो हम इस वाले को ऐसे भी दिखा सकते हैं. कैसे? ये हमारा 6 का था, ये भी 6 का था, ये भी 6 का, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 12 और ये 6 हो गया हमारा. अब ये दोनों पैरेलल में आ गए तो हमारा आर इक्विवेलेंट हमारा 2 क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट 2 1/12 प्लस 1/12, एलसीएम 12, यहाँ पे 1 प्लस 2, ये आ जाएगा 3/12. रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा 12/3 which is equals to 4. So to get our R equivalent of 4 ohm, we have to connect 2 resistors in series and then the third one should be connected in parallel with the other 2. ठीक है, तो यही 4 कॉम्बिनेशन है, इसी में आपको लगा के देख लेना है. और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बोर्ड में काफी बार आया हुआ है. एक कॉम्बिनेशन पूरा सीरीज ले लीजिए, दूसरा कॉम्बिनेशन पूरा पैरेलल. तो सीरीज आप सिंपली देख के निकाल सकते हो, यहाँ से 18 होगा. पैरेलल के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? 3 रसिस्टर है तो 3/6, तो वो आएगा 1/R इक्विवेलेंट. उसको उल्टा करेंगे हम लोग तो आ जाएगा R इक्विवेलेंट यानी 2.
अब 2 और 18 तो हमको लाना नहीं है, उसके बीच का वैल्यू है ये। तो एक हमारा हो जाएगा 2 पहले पैरेलल और उसके बाद तीसरा सीरीज, तो 9 ओम हमारा आ गया, और दूसरा होगा हमारा 2 सीरीज और उसके साथ तीसरा पैरेलल। यही 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल्स है और इसी में से कोई ना कोई आंसर होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप कर लेंगे खुद से। अब हम चलते हैं दूसरे डाउट्स की तरफ। अब जो डाउट है हमारा वो 10th एज के एक बच्चा है सिद्धार्थ, उसी ने पूछा है हमसे। ये एनसीईआरटी का डाउट अब नहीं है, वो दूसरे किसी बुक का है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन इसमें इन्होंने पूछा है, वाई आर इलेक्ट्रिक बल्ब फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव हाइड्रोजन और आर्गन। इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम बनाते हैं उसमें फिलामेंट टंगस्टन का होता है हमारा, क्योंकि टंगस्टन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा अच्छा है मेटल्स में, उसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो पिघलता नहीं है। तो उसमें इनर्ट गैस बढ़ने का कारण ये है कि अगर उस बल्ब में एयर चला जाएगा तो एयर में तो हमारा ऑक्सीजन होता है। अब क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, ये आप आगे पढ़ोगे केमिस्ट्री में, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो क्योंकि बल्ब में फिलामेंट जो है वो करंट देने से गर्म होगा, और गर्म होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, और उस हीट के कारण जो हमारा रिएक्शन है वो तेज हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, जिसके कारण उस बल्ब के फिलामेंट का ऑक्सीडेशन होगा और वो खराब हो जाएगा कोरोजन के कारण। तो इसी कारण से बल्ब के अंदर हम नाइट्रोजन या कोई नट गैस फिल कर देते हैं, ताकि उस फिलामेंट का रिएक्शन ना हो एयर के साथ, क्योंकि एयर रहेगा तो रिएक्शन होगा, उसमें ऑक्सीजन है। तो इनर्ट गैस डालने से क्या होगा, वो तो इनएक्टिव होते हैं, कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए वो रिएक्ट नहीं करेंगे जल्दी। तो इनर्ट गैस डाल देंगे हम लोग, तो हमारा जो फिलामेंट का लाइफ है वो बढ़ जाएगा। तो ये इसका आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का है। चलिए इसको देखते हैं। इन्होंने पूछा ये क्वेश्चन ऐसे, इस तरीके का कुछ हमारा डायग्राम है ये। चलिए इस डायग्राम को यहाँ, इसको डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे, यहाँ बना रहे हैं। और इस वाले का वैल्यू 3 ओम, इस वाले का वैल्यू 7 ओम, इसका वैल्यू 10 ओम, दिस इज 5 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 5 ओम। ये हमारा पॉइंट ए है और दिस इज अ पॉइंट बी, एंड द क्वेश्चन सेज फाइंड द रेसिस्टेंस, 5 रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द आर इक्वल टोटल रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप देखो, इसमें बैटरी तो जुड़ा नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सीरीज कहाँ है और पैरेलल कहाँ है, तो सबसे आसान तरीका इसका ये है कि आप ए और बी जहां से हमको बोल रहा है, किसी एक जगह से करंट पहले निकाल लो आप। तो हमने यहाँ से करंट निकाला, आई करंट, ठीक है। और मैंने एक बात बताई थी आपको कि करंट किसी जंक्शन पे फेस करता है तो करंट बटता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आई करंट चला, ये देखो यहाँ पे जंक्शन आया, ठीक है। तो इस वाले आर्म में हमारा I1 करंट चला गया और इस वाले आर्म में हमारा I2 करंट चला गया। अब यहाँ पे तो जंक्शन है नहीं, यानी इस वाले आर्म में भी हमारा करंट क्या होगा, I2, ठीक है। अब इन दोनों रसिस्टर्स में करंट का वैल्यू सेम आ रहा है हमारा। अब करंट का वैल्यू सेम किस में होता है, सीरीज में होता है। तो यानी ये दोनों रसिस्टर जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं। तो इनको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा डायग्राम आसान हो जाए। तो क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है, दोनों को जोड़ दो, 7 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 10। यानी यहां से हमारा इस तरह का कुछ डायग्राम बन जाएगा। और ये हो गया हमारा 10, क्योंकि इन दोनों को हमने हटाया और उसके जगह पे एक 10 ओम का लगा दिया, वो भी वही काम करेगा। ये भी 10 हमारा, ये कितना है हमारा 5, एंड दिस इज ऑल्सो 5। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है, एकदम क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे हम। अब इन दोनों का क्या पैरेलल में है, 1/10 + 1/10, ये आएगा हमारा 5। तो इन दोनों को हटा के हम 5 ओम का रसिस्टर लगा सकते हैं। तो यानी यहाँ से ये डायग्राम हमारा कैसा हो जाएगा, ठीक है, 5 5 5। अब देखो यहाँ पे कहीं जंक्शन नहीं है, करंट सब में सेम जा रहा है, साफ दिख रहा है, ये सीरीज में है तीनों,
तीनों को जोड़ लेंगे 5 + 5 + 5 दैट इज 15 ओम, यानी अब इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 15 ओम। दिस वाज ए एंड दिस वाज बी, हियर ए बी। तो अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों को जोड़ के हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा 15 ओम का ए बी, यानी इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारा 15 ओम का है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग, करंट दोहरा लेंगे और देख लेंगे अगर करंट का वैल्यू, करंट बढ़ रहा है हमारा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट बढ़ रहा है यहाँ पे अलग है, और इन दोनों का हमने पहले देखा करंट सेम था तो सीरीज में देख लिया। अब इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, यानी ये पैरेलल है ये। फिर इसको हमने सॉल्व करा, इसके बाद यहाँ I1, फिर यहाँ भी I1 और इसमें टोटल में क्या है I1, तो ये सीरीज में है, सेम करंट जा रहा है, तो सीरीज का फॉर्मूला हमने लगा लिया, 15 ओम आ गया हमारा। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, और ज्यादा क्लियर हो जाए आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस को डायग्राम से ही कर सकते हैं, आपको फिगर बार बार बनाना होगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, इससे बहुत आसान है। This is 45 volt, 10 ohm, 15 ohm, 20 ohm, and this is 5 ohm. Question says, in the circuit shown, calculate the net resistance of the circuit, overall resistance हमको निकालना है, and the current flowing through it. ठीक है, तो हमने पहले I करंट निकाल लिया, हमारा वही पुराना मेथड। फिर I करंट जब यहाँ पहुंचेगा तो उसको दो जंक्शन फेस करना पड़ा, इस वाले में करंट I1 चला गया और इस वाले में करंट I2 चला गया। अब इन दोनों में I2 ही जाएगा क्योंकि जंक्शन नहीं आ रहा है, इन दोनों में I1 ही जा रहा है, यानी ये दोनों हमारे सीरीज में लगे हुए हैं और ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इस सर्किट को कुछ यूं हम बना सकते हैं, अब सीरीज में तो जोड़ दो 10 + 15 25, ठीक है, और उसके नीचे भी 20 + 5 वो भी 25, ठीक है, तो ये 25 और ये भी 25, इन दोनों के लिए ऊपर वाला 25 और इन दोनों के लिए नीचे वाला 25, ठीक है। अब हमको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये जो रजिस्टर्स है ये पैरेलल में है। अब पैरेलल में इनको सॉल्व कर लेंगे, पैरेलल में जब इनको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के तो वो आएगा 12.5 इसका आंसर। तो क्योंकि दो सेम है और दो सेम पैरेलल में लगे हों तो एक उस मतलब हाफ हो जाता है ये, ठीक है, तो 25 का हाफ हो जाएगा मेरा 12.5, यानी इन दोनों की जगह अब हम 12.5 ओम का एक रजिस्टर लगा सकते हैं, सिंगल रजिस्टर। आर इक्विवेलेंट ये हो गया मेरा, और ये हो गया 12.5 ओम का, और सेल था हमारा 45 वोल्ट का। आर इक्विवेलेंट निकल गया। अब हमें करंट निकालना है, मैंने बोला है बार बार कि करंट निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ, I is equals to V upon R equivalent, then I is equals to 45 upon 12.5, ये आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आए वही आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ये दूसरा न्यूमेरिकल था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद आते हैं, और इस बच्चे ने ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, इसने सोचा है कि चलो क्या बनाए हम, इसको होमवर्क मिला होगा इसको कहीं से, तो इसने सोचा कि चलो सर से ही पूछ लेते हैं, मेहनत इसका बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, उसका डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ। सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है, सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है। 6 ओम, 14 ओम, 10 ohm, and here 20 ohm, this is also 20 ohm, and here 25 ohm, a single cell,
sorry, here is the point P and here is the point Q and this is 70 volt cell. So the question says find the equivalent resistance between the point P and Q. इन दोनों पॉइंट्स मतलब इस वाले रेसिस्टर को इग्नोर, इस वाले उधर वाले को इग्नोर कर देना है हमें, इस दोनों पॉइंट के बीच निकालना है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है एंड द करंट थ्रू 25 ओम रेसिस्टर, और उसके बाद हमें इस 25 ओम वाले से करंट निकालना है, तो वो तो खैर देखेंगे, पहले पी और क्यू के बीच आर इक्विवेलेंट निकाल ले। तो जब हम यहाँ से करंट दोहराएंगे तो यहाँ 3 जंक्शन फेस कर रहा है करंट हमारा, तो इस वाले आर्म में सपोज I1 चला गया, इस वाले आर्म में I2 और इस वाले आर्म में I3। अब क्योंकि तीनों में जंक्शन में करंट अलग अलग है, यानी तीनों एक दूसरे से पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ I2 गया, इस वाले में भी I2 होगा, यानी ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज, फिर यहाँ से ये, तो ये 14 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा हमारा 20। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इस वाले को। तो बस अभी हम पी और क्यू के बीच ही सोचते हैं क्या हो रहा है। तो पी और क्यू के बीच एक हमारा रेसिस्टर ऐसे लगा हुआ है और इसी के ठीक पैरेलल ये हो गया, ये भी 20 और ये जो डायगोनली लगा हुआ था ये भी 20 है हमारा, ठीक है। दूसरा रेसिस्टर इस ढंग से लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला हमारा भी 20 है और ये हमारा 10 है। अब हमको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ये दोनों रेसिस्टर। इसको हमने सॉल्व करा, दोनों में करंट सेम आएगा I2, तो पहले हमने इस सेगमेंट को सॉल्व करा, ये हमारा सीरीज में दिखा हमें, क्योंकि दोनों में करंट सेम है। तो ये 20 ओम हो गया, दोनों को जोड़ दिया हमने, उन दोनों को हटा के एक सिंगल 20 ओम का लगा दिया। और फिर हमने यहाँ क्या देख रहे हैं हम, ये दोनों ठीक पैरेलल में दिख रहे हैं हमें, तो इन दोनों को हटा के हम एक सिंगल 10 ओम का रेसिस्टर लगा सकते हैं हम। तो इन दोनों को हमने हटाया और सिंगल एक 10 ओम का रेसिस्टर लगा दिया, ठीक है। ये 10 ओम का रेसिस्टर हमारा आ गया यहाँ पे, उन दोनों के जगह पे। अब यहाँ देखते हैं हम, फिर से करंट हमने दोहराया, तो हमने क्या देखा कि इस वाले में करंट अलग जाएगा और इस वाले में करंट अलग जाएगा। अब ये करंट यहाँ से गया और यहाँ भी गया, यानी इन दोनों में करंट हमारा सेम आ रहा है, क्योंकि करंट कहाँ से निकलेगा हमारा, क्यू से, ठीक है। ये करंट क्यू से निकल जाना है, यानी ये करंट इधर नहीं जाएगा, इधर ही जाएगा। अब ये इधर जो करंट जा रहा है वो यहाँ भी जाएगा, तो यानी इन दोनों रेसिस्टर्स में अब करंट हमारा सेम है और ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, सेम करंट किसमें होता है, सीरीज में। तो ये दोनों 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, यानी इन दोनों को हटा के हम एक ऐसा रेसिस्टर लगा सकते हैं, ये भी 20 और ये भी 20। अब ये हमें दिख रहा है क्या, पैरेलल, तो 20 और 20 का टोटल ओवरऑल कितना आएगा 10, यानी इस पूरे झोल झाल का जो ओवरऑल रेसिस्टेंस है वो कितना है हमारा 10 है, इतने बड़े चीज का। तो इन दोनों को पैरेलल का फॉर्मूला हमने लगाया और ये आ गया हमारा 10, ठीक है। इस पूरे झोल झाल का जो ओवरऑल है वो 10 है, यानी हम इन सबको हटा के हम एक 10 ओम का रेसिस्टर लगा सकते हैं, ठीक है, पी और क्यू के बीच 10। अब क्योंकि हमें 25 वाले से करंट निकालना है, पी और क्यू के बीच आर इक्विवेलेंट कितना आया 10 आ गया हमारा। अब इससे करंट निकालना है हमें दिख रहा है ये सीरीज में है, तो 25 प्लस 10 कितना होगा 35। अब क्योंकि दोनों सीरीज में, तो दोनों में करंट सेम होगा और वो करंट होगा सर्किट के करंट के बराबर। तो हम सर्किट का करंट कैसे निकालते हैं, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। वी हमारा 70 है और इन दोनों का आर इक्विवेलेंट सीरीज में है तो 35 हो जाएगा, कैंसिल करा हमने, ये आ गया 2 एम्पियर, यानी इससे भी 2 एम्पियर करंट होगा और इस PQ के थ्रू भी ओवरऑल करंट 2 एम्पियर होगा। अब अलग अलग सेगमेंट में करंट अलग अलग हो सकता है, तो ये सॉल्यूशन इसका हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। तो सारा कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है, उस बच्चे ने ऐसा ही पूछा है, देखते हैं अगर अलग तरह का कुछ होगा तो करेंगे, नहीं तो इसको लीव करते हैं अब। सारा क्वेश्चन ऐसा ही है उस बच्चे का, तो अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। एक क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैव लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक वायर है जिसका लेंथ जो है वो L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इसके रेसिस्टेंस का वैल्यू है 10। अच्छा,
अब मान लिया उस वायर का रेसिस्टिविटी रो है L अपॉन ए, यही होता है तो रेसिस्टेंस, और ये कितना है हमारा 10 ओम के बराबर। फिर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उस वायर का लेंथ ए एल, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, रेसिस्टिविटी हमने मान लिया रो होगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल अपॉन ए, और रो एल अपॉन ए किसके इक्वल है, 10 के इक्वल, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। अब सेम मटेरियल बोल रहा है यानी हमारा रेसिस्टिविटी फिक्स, रो का वैल्यू दोनों में सेम होगा। हैविंग लेंथ L बाई 4, अब हमारा जो दूसरा वायर है R डैश, ये रो L अपॉन 4 एंड एरिया 2.5 ए, ये हमारा मतलब एरिया 2.5 टाइम्स दिस एंड लेंथ इज L बाई 4। ये 4 नीचे आएगा तो 4 इंटू 2.5 हमारा कितना होगा 10, रो L अपॉन ए, और इसको ऐसे लिखो रो L अपॉन ए, और यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। ये R डैश हमारा हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 रो L अपॉन ए, और रो L अपॉन ए कितना है हमारा 10 है। अब 10/10 कितना हो जाएगा 1, यानी R डैश हमारा 1 ओम होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए तो आज के लिए सारे डाउट्स हो गए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।